Hello everyone. Welcome to the fresh topic of current affair. Today we will learn about neo-nazism. Neo-nazism has been in the news for quite some time. So without further delay, let's see what is the agenda for today's video. Here first we will see the news and then we will jump to the background. And then after we will check the nuances of the neo-nazism. Then we will focus on the timeline. In that we will see how Nazism has been progressed till the date. And lastly we will focus upon Indian context. Recently, Donald Trump administration has labeled Russian nationalist group as a terrorist organization. So this becomes important thing. Why? Because this is a white supremacist group. अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट नहीं रही जिन्होंने व्हाइट सुप्रीमसिस्ट ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल लगाया हुआ हो, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रशियन इंपीरियल मूवमेंट. So this is the first news, and in second news, neo-Nazi militant group grooms teenagers via Russian meme site iFunny. तो iFunny के थ्रू इन्होंने बहुत ज्यादा टीनेजर को इन्फ्लुएंस किया था और उनको रिक्रूट भी किया था. बट रिसेंटली FBI हैज एक्सपोज्ड दिस ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम है द बेज. इस ग्रुप का नाम क्या है? द बेज. So the base is a neo-Nazi militant group. To understand neo-Nazism or neo-Nazi, we must understand Nazism first. So let us check it out. What is Nazism? So Nazism is a national socialism. ये नेशनल सोशलिज्म का एक एब्रिवेशन है, और नेशनल सोशलिज्म को डॉइच लैंग्वेज में बोला जाता है नेशनल सोशलिज्मस. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट वर्ड फॉर any native Indian, and ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. So this particular ideology was propagated by Adolf Hitler, who happened to be a German chancellor. And in Nazism, nationalism went a step ahead. तो ट्रेडिशनल नेशनलिज्म में जो आप सेंस ऑफ प्राउड होता है हमारा, वो नाजिज्म में कहीं और ज्यादा आगे बढ़ जाता है. वो एकदम एक्सट्रीम सेंस में आगे चला जाता है. And sometimes this is also referred as a hyper nationalism or ultra nationalism. तो इसमें क्या होता है कि आप नेशन के बारे में तो गलत नहीं बोल सकते, वो तो एक अंडरस्टूड चीज है. बट नेशन की जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी आपको कैसा ब्लाइंडली फॉलो करना होता है. सो nobody can raise voice against government or the leader. So you must have blind faith on the government. तो ये एक कैसा हो जाता है कि एक forced nationalism है. Nationalism feeling from the inside and forced nationalism, both are the different things. So in here we are focusing upon the forced nationalism. कि हाँ, अगर कहीं भी आपको वो झंडा मिल गया तो आपको वहां पे रुकना ही पड़ेगा, उसको सल्यूट देनी ही पड़ेगी. अगर कहीं भी टीवी में भी नेशनल एंथम चल रहा है तो आपको कंपलसरी खड़ा ही रह जाना पड़ेगा फॉर द 52 seconds. So this is kind of a hyper nationalism or ultra nationalism. So Hitler's regime was called Third Reich. So what is first and second, we will see in the upcoming slides. First of all, we need to focus on how the Nazi government was. तो ये गवर्नमेंट को कहा जाता है टोटलिटेरियन. तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट मतलब क्या? एक ऐसी गवर्नमेंट कि जिसके सामने कोई ऑपोजिशन पार्टी हो ना सके. जो भी ऑपोजिशन पार्टी होगी या तो उनको मार दिया जाएगा, या तो उनको दफा कर दिया जाएगा, या तो उनको नेशन से बाहर निकाला जाएगा. एंड नॉट जस्ट दैट थिंग, कोई एक इंडिविजुअल भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, जैसे कोई पत्रकार हो गया या तो फिर कोई एंकर हो गया, whoever will be, and he will be prosecuted. So this kind of a suppression will be there. And उसके ऊपर public life and private life both will be decided by government only. So this is kind of a complete form of authoritarianism. तो इसमें कैसा होता है कि लीडर ने जो बोला वही सभी को फॉलो करना पड़ेगा. देयर विल बी नो ऑपोजिशन वॉइस. तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल रिप्रेशन और पॉलिटिकल सप्रेशन, कि जहां पे आप डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आपकी हुई या उसके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठा सकते. दैट इज वाई देयर विल बी नो और जीरो, लाइक नेग्लिजिबल डेमोक्रेसी. उसके साथ दूसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनालिटी कल्टिज्म. पर्सनालिटी कल्टिज्म मतलब क्या? कि देयर विल बी वन लीडर, आफ्टर सम टाइम्स ही विल बी बिगर देन द नेशन. तो लीडर विल बी बिगर देन द नेशन.
तो जो हमने इंडिया में ऐसा कभी देखा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधीज रेजिम काफी सारे उसके फॉलोअर, नॉट हर सेल्फ बट उसके फॉलोअर्स ऐसा बोलते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो एट सम पॉइंट इंदिरा गांधी बिकेम लार्जर देन द इंडिया इज अ नेशन, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ कि कभी-कभी मोदी गवर्नमेंट के जो भी फॉलोअर्स है या तो फिर फैन है, वो मोदी साहब को बहुत ही ज़्यादा हेरोइक बना देते हैं। इवन दो उनको उनके सामने कोई क्वेश्चन पूछना भी इल्लीगल हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी कोई भी क्वेश्चन कर लोगे देन यू विल बी लेबल्ड एज़ अ एंटी नेशनल, या तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप देश छोड़ के चले जाओ। सो समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट, समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम द फॉलोअर ऑफ द गवर्नमेंट. When it comes from the government, then it is called state terrorism. Next, let us see what are the nuances of Nazism. Nazism के बारे में क्या-क्या बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है रेशियल थ्योरी। एडोल्फ हिटलर रेशियल थियरी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था और उसने अपने हिसाब से एक थ्योरी बनाई थी जिसको वो पूरी थ्योरी आर्यन मास्टर रेस के ऊपर बेस्ड थी। उसका ऐसा कहना था कि नॉर्डिक ग्रुप ऑफ पीपल आर द सुप्रीम और प्योर इन अ रेस, देन देयर कम्स ब्लैक स्लेव्स एंड अरब्स, और उसके बाद आते ज्यूज, और ज्यू को वो बायोलॉजिकल थ्रेट भी मानते थे। तो आर्यन मास्टर रेस की सुप्रीमसी बताने के लिए उन्होंने क्या किया, पोस्टर हो, रेडियो हो, या तो मूवीज हो, एजुकेशन हो और न्यूज़पेपर हो, सभी में उन्होंने ये हेट्रेड स्प्रेड करना चालू कर दिया। एंड दैट इज व्हाई आर्यन मास्टर रेस थ्योरी या तो फिर रेशियल थियरी बिकम वेरी वेरी फेमस इन जर्मनी amongst the German nationals who were the natives, not the migrant. Migrant को वो लोग obviously alien समझते थे। उसके बाद दूसरा आता है adoption of swastika. So you will see there is a presence of swastika in Nazi flag and logo. तो ये कहाँ से आया? तो स्वस्तिका exactly belong to the Aryan civilization in India. तो जो आर्यन लोग आए थे तो उन्होंने स्वस्तिक को अडॉप्ट किया। स्वस्तिक का मीनिंग होता है गुड फॉर्च्यून और वेल बीइंग। सिंस हिटलर वाज क्लोजली fascinated by Aryan supreme race or Aryan master race, that's why he adopted swastika logo. उसके साथ साथ एक दूसरा वर्ड आता है एलियन और पैरासाइट, जो थे ज्यूज फॉर हिटलर। To make Jews' persecution publicly acceptable, Nazi propagandists branded Jews as a biological threat. Just imagine उन्होंने उनको biological threat बना दिया था। कैसे? कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्पॉन्सर चालू कर दिया कि जो भी रेसिज्म प्रोपोगेंडा चालू कर रहा है उनको वो फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, पॉलिटिकल हेल्प करेंगे, जो भी होगा जैसे भी करके जूइश का एलिमिनेशन करना है। कि जो चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, पीपल ऑफ द स्कूल वर सीन बर्निंग द बुक्स ऑफ ज्यूज ऑथर एंड ज्यूज स्क्रिप्चर्स एज वेल। सो जस्ट अंडरस्टैंड कितनी हेट्रेड तब फैलाई गई होगी। Then it comes the our topic of the video, that is neo-nazism. तो what does neo means? तो neo का मतलब ऐसा होता है कि जो भी चीजें वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप पार्ट में या तो पूरी तरह से नाजिज्म आइडियोलॉजी की बरकरार रखने का ट्राई कर रहे हैं या तो फिर नाजिज्म आइडियोलॉजी को रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नियो नाजिज्म। Because after World War II, Nazism was in decline and it was nearly ended as well. But there were some people who were fascinated by Hitler's ideology or the supremacy of particular thing. It might be race, it might be religion, it might be region, anything. It could be anything at the national level, which was called neo-Nazism. Sometimes it was militant or social or political movements as well. And their last aim was to initiate Fourth Reich. As we have seen, the Hitler's Reich was third, and neo-Nazi people, they wanted to start Fourth Reich. So here is the timeline of Reich. तो फर्स्ट राइक वॉज होली रोमन एम्पायर, जो रोम में था। उसके बाद हुआ सेकेंड राइक which was called German Empire, which lasted from 1871 to 1918, जो वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ, जर्मनी में रिप्रेशन आया, जर्मनी की हालत बुरी होती गई, एंड देन
there was a rise of a Hitler. So Hitler's regime was called 1933 to 1944 Third Reich. And after World War II, जो भी लोग नाजिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, even in a parts or as a whole, then it is called Fourth Reich, which comes here after World War II till this date. What are the principles of neo-Nazism? So first of all, this is the foremost important point is racism. So Nazism also focused on a racism and neo-Nazism also focused on a racism. तो यहाँ पे white supremacy की बात होती है mostly, and they think that black people are inferior in human quality. So black people को जैसे भी तरीके से उनको वहां से निकालना है. Mostly it is concerned with some European countries and largely United States. And with racism, they are homophobic as well. जो homosexual people है उनके अगेंस्ट भी एक प्रोपोगेंडा चलता है. Anti-Semitism, obviously, anti-communism, obviously, and then there is a one another point. It is called blood and soil. So blood and soil is like जो बॉडी की प्योरिटी है, इट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लड, और जहां पे आप रह रहे हो वो रीजन को कहा जाएगा सॉइल. तो जो लोग एक रीजन में रह पाएंगे वो वही लोग रह पाएंगे जो एक ब्लड से प्योर हो, जिनकी रेस एकदम प्योर हो. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू सन्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे स्टेट में देखा गया है. बट सन्स ऑफ सॉइल इज मोर ऑफ रीजनलिज्म, एंड इन हियर they wanted to spread it at a national level, so it is a ideology, not regionalism. And mostly we have this group, the base, which is doing all the neo-Nazi stuff. वो क्या करता है कि white supremacist है एक तो, और accelerationist है. मतलब क्या कि वो क्या accelerate करना चाहता है? कैपिटलिज्म. जो भी गरीब बच्चे ब्लैक है या तो फिर बाहर से माइग्रेंट आए हुए हैं, उन सभी को ये लोग धकेल देना चाहते हैं. इन कैपिटलिस्ट मूवमेंट दे वांट टू गो वन स्टेप अहेड. फार राइट पॉलिटिक्स भी इसको कहा जाता है. दे आर हेट ग्रुप्ड एंड फॉर्म्ड इन 2008. presence is spread in United States, Canada, Australia and South Africa as well. And ये क्या फॉलो करते हैं? व्हाइट एथनोस्टेट. मतलब जो व्हाइट्स है उनको ही पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, जो व्हाइट है उनको ही सिर्फ सिटीजनशिप मिलनी चाहिए. ब्लैक कैन लिव हियर बट दे विल लिव एज अ इंफीरियर टू व्हाइट पीपल. एंड विथ दैट दे ऑपरेट हेट कैंप्स. और हेट कैंप्स में क्या किया जाता है? जो भी हमारे टीनेजर है उन सभी को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और उन सभी को वहां पे बुलाएंगे, उनको व्हाइट सुप्रीमेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, हेट्रेड फैलाई जाएगी, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाएगा. एंड दे यूज्ड आई फनी प्लेटफॉर्म, रशियन मीम वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट. Let us check the Indian context, why it is important for India and why it is important for us in UPSC. So इंडिया के बारे में अगर काफी सारे वर्ल्ड मीडिया क्या बोल रहे हैं कि अभी इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड टोटलिटेरियन रेजिम, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है इट कंसिस्ट ओनली 2 or 3 people, एंड इट इज नॉट हार्मफुल येट, बट द मेन हार्मफुल थिंग इज कि जो ये 2-3 लोग डिसीजन ले रहे हैं उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला है नहीं. If the decision is correct or not correct is a secondary thing, but the primary thing is कि कोई real opposition नहीं है. क्योंकि गवर्नमेंट को प्रश्न पूछने पर लोग आपको एंटी नेशनल बोल देंगे, या तो फिर बता देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ, या तो फिर देश छोड़ के चले जाओ. तो there is not a single space where you can question the government, to have a right of questioning the government. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया है. बट somehow फ्रॉम द फॉलोअर ऑफ द गवर्नमेंट, या तो फिर उसके दूसरे कार्यकर्ता कुछ ऐसा करेंगे दैट दे विल सप्रेस द voices which are against the particular government. So there are allegations that India is doing this thing through state mechanisms. अगर state mechanism से हो रहा है then it will be called as a state terrorism. In mains examination they could ask, personality cultism has seen in India in recent times. Do you think it is denting the democracy of nation? Discuss. So ऐसे क्वेश्चन वो मेंस में पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू करंट अफेयर. अब आपको
उसके बेस के बारे में पता नहीं है, उसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है और करंट कंटेक्स्ट पता नहीं है, साथ-साथ इंडियन कंटेक्स्ट एज़ वेल, तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपके 2 पेजेस में ये सारी डिटेल अच्छे से फिल्ड अप है, देन इट विल बी रियली गुड आंसर। पर्सनैलिटी कल्टिज्म मतलब क्या? कि कोई एक ऐसा लीडर होगा जो देश से बड़ा हो जाएगा, जिसकी हमने आगे बात कर चुके हैं। वी हैव एन्जॉयड क्लोज टाइज विद द नाज़ी रेजिम। अब आप बात सुभाष चंद्र बोस की करें तो दे हैव ही हैज़ रिक्रूटेड प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम हिटलर हिमसेल्फ। और इवन दो Indian Hindu fundamentalists distance themselves from the neo-Nazi or Nazi, but still they share many similarities. कैसे similarities? कि Nazi people were against the particular race, यहाँ पे Hindu fundamentalists are against the particular religion, mostly Muslim religion or Islam religion. Hindu religion or Hindu ideology is the best, and every other ideology is inferior to them. दूसरा एक पॉइंट है कि नॉर्थ ईस्ट पीपल्स फीलिंग ऑफ बीइंग आउटलैंडर इन मेनलैंड इंडिया। इमेजिन वी हैव सीन द वर्ड लाइक मेनलैंड चाइना, बट कई बार मेनलैंड इंडिया जैसा भी वर्ड हमें अभी देखने मिल रहा है, विच इज रियली नॉट गुड इन अ टेस्ट, स्पेशली एज फार एज द यूनिटी इज कंसर्न। तो नॉर्थ ईस्ट पीपल का जो भी ये फीलिंग है, एंड इट इज क्लोजली रिजेंबलिंग विद द सन्स ऑफ सॉइल। तो सन्स ऑफ सॉइल एज सच इट इज अ रीजनल मूवमेंट, या तो फिर ये एक रीजनल फिनोमेना है, और ये नॉर्थ ईस्ट पीपल का सेंट्रल इंडिया में जो भी उनका आउटलैंडर फील होना, दैट इज ऑल्सो अ रीजनल फिनोमेना। बट जस्ट इमेजिन दिस फिनोमेना गेट्स वाइडर एक्सेप्टेंस एंड वो पूरे इंडिया में फैल जाए और वो नेशनल लेवल पे फैल जाए, देन इट विल बिकम कंप्लीटली नियो नाजी मूवमेंट, क्योंकि वो नियो नाजी के जो भी फंडामेंटल है वो इसके साथ क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं। एंड apart from this, with coming age of digitalization, we should expect more transparency from the government, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, अकाउंटेबल नहीं रहेगी, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या गवर्नमेंट में हो रहा है? एंड दैट इज व्हाई देयर मस्ट बी सर्टेन प्लेटफॉर्म वेयर गवर्नमेंट must listen to the people, because government is formed for the people and formed by the vote of the people, and that is why it is a must for any nation to be accountable and to be transparent in the governance. तभी तो good governance जैसा हम कुछ यहाँ पे सक्सेस कर पाएंगे। ऐसा दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि दर स्पेगल करके एक जर्मन मैगजीन है, ये एक ऐसा बोल रहा है कि पाकिस्तान में प्रो नाजी सेंटिमेंट वाइड स्प्रेड है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो लोग इसराइल को अपोजिट कर रहे हैं और पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल को कैसे अगेंस्ट कर रहे हैं? बिकॉज इसराइल इज मोस्टली ज्यूइश नेशन, तो पैलेस्टाइन को वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे फॉर दी मुस्लिम प्रेजेंस। तो यहाँ पे रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट भी आता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, इफ इंडिया हैज टू ग्रो एज अ ट्रू example of leadership even in region or in world, then our democracy must be strong in upcoming time. If it doesn't get strong enough upcoming time, trust me, we will not be a leader in a region as well. So I hope you have learned a good thing from the video, and it become helpful to you not just in examination but for the understanding of society as well, how the political system works. So thank you very much. See you next time.